हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्नैपशॉट्स का लेसन नंबर 3 कर लेते हैं, दैट इज रंगा's मैरिज। अब इसमें एज द टाइटल सजेस्ट इट इज अबाउट द मैरिज ऑफ द प्रोटैगनिस्ट रंगा। रंगा जो है वो मेन कैरेक्टर है, इसमें हीरो है यू कैन से, और उसकी मैरिज का कुछ इसमें सिचुएशन है। तो बीच बीच में कुछ फनी इंसिडेंट्स भी आएंगे इसमें, तो थोड़ा सा ह्यूमरस और लाइट हार्टेड लेसन है ये। So let us read this. When you see this title, some of you may ask Ranga's marriage. Why not Ranganatha Viva or Ranganatha Vijay? Well, yes, I know I could have used some other mouth-filling one like Jagannath Vijay or Girija Kalyana, but then this is not about Jagannath's victory or Girija's wedding. It's about our own Ranga's marriage and hence no fancy title. Hosali is our village. You must have heard of it. No? What a pity. But it is not your fault. There is no mention of it in any geography book. Those sahibs in England writing in English probably do not know that such a place exists and so make no mention of it. Our own people to forget about it. You know how it is. They are like a flock of sheep. One sheep walks into a pit, the rest blindly follow it. When both the Sahibs in England and our own geographers have not referred to it, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map, can you? And so there is not even the shadow of our village on any map. A first paragraph में the writer talks about his village. उनके village का नाम है होशाहली. It's in South India somewhere. और वो ये कहते हैं कि ये इतना छोटा-सा विलेज है कि किसी को इसके बारे में नहीं पता, क्योंकि ये कहीं पे ज्योग्राफी बुक्स में, मैप्स में कहीं पे मेंशन्ड नहीं है। सो ही इज़ जस्ट टॉकिंग अबाउट हिज़ विलेज। Sorry, I started somewhere and then went off in another direction. If the state of Mysore is to Bharatvarsha what the sweet Karigadabu is to a festive meal, then Hosa Ali is to Mysore state what the filling is to the Karigadabu. अब ये बड़ा फनी उनका स्टाइल है बताने का कि अपने विलेज के बारे में बता रहे हैं कि हमारा विलेज जो है वो मैसूर सिटी का मेन पार्ट है। जैसे वो एक स्वीट का एग्जांपल लेते हैं कि एक स्वीट है करीगा डाबू, उसकी जो फिलिंग है अंदर, उसके अंदर जो फिलिंग भरी जाती है, वो उसकी जितनी इम्पोर्टेंस है, उतनी ही इम्पोर्टेंस है हमारे विलेज होसा अली की मैसूर स्टेट में। What I have said is absolutely true, believe me. I will not object to your questioning it, but I will stick to my opinion. I'm not the only one who speaks glowingly of Hosha Ali. We have a doctor in our place. His name is Gunda Bhatta. He agrees with me. He has been to quite a few places. No, not England. If anyone asks him whether he has been there, he says, No, Annaya, I have left that to you. Running around like a flea pestered dog is not for me. I have seen a few places in my time, though. As a matter of fact, he has seen many. Now he just talks about another doctor in his village कि जो डॉक्टर हैं वो भी होशा अली की बहुत तारीफ करते हैं जैसे मैं तारीफ करता हूँ अपने विलेज की। तो अभी ऐसा कोई खास बात नहीं कर रहे हैं नैरेटर, जस्ट इधर-उधर की बात हो रही है। We have some mango trees in our village. Come visit us, and I will give you a raw mango from one of them. Do not eat it, just take a bite. The sourness is sure to go to straight to your Brahmarandhra. ब्रह्म आरांध्रा कहते हैं जो स्कल्क में जो सॉफ्ट पार्ट होता है बीच में, जो तालू जिसे कहते हैं हम। I once took one such fruit home and a chutney was made out of it. All of us ate it. The cough we suffered from after that, it was when I went for the cough medicine that the doctor told me about the special quality of the fruit. अब वो अपने गांव के आम के बारे में बता रहे हैं कि वो इतने खट्टे होते हैं कि उनकी एक बार हमने चटनी बनाई थी तो उनका गला बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। Just as the mango is special, so is everything else around our village. We have a creeper growing in the ever so fine water of the village pond. Its flowers are a feast to behold. Get 2 leaves from the creeper when you go to the pond for your bath, and you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal. You will say, I'm rambling. Rambling means distracting, मतलब कहीं से कहीं
मूव करना कि बात किसी और चीज़ की हो रही है और फिर हम डाइवर्ट हो जाएँ किसी और टॉपिक पे। It is always like that when the subject of our village comes up. But enough. If any one of you would like to visit us, drop me a line. I will let you know where Hosha Ali is and what things are like here. The best way of getting to know a place is to visit it. Don't you agree? अब वो कह रहे हैं कि हमारे विलेज में एक बेल है, क्रीपर, बेल, जिसके पत्ते इतने बड़े हैं कि अगर आप उनको तोड़ लें, तो आपको खाना खाने के लिए प्लेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर वो खुद ही कहते हैं कि मैं कहीं से शुरू हुआ था और अब मैं कहीं पे पहुँच रहा हूँ। तो इन फाइनली ही जस्ट सेज़ कि अगर आप विज़िट करना चाहते हैं, तो मुझे एक लाइन ड्रॉप कर दीजिए, मुझे एक मैसेज भेज दीजिए और मैं आपको बता दूँगा लोकेशन हमारे विलेज की। What I'm going to tell you is something that happened 10 years ago. अब वो मेन स्टोरी पर आ रही हैं। We did not have many people who knew English then. Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. It is different now. There are many who know English. During the holidays, you come across them on every street talking in English. Those days, we did not speak in English, nor did we bring in English words while talking. अब वो कह रहे हैं कि करीब 10 साल पहले हमारे विलेज में बहुत से लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी। सिर्फ विलेज का जो अकाउंटेंट था, उसने अपने बेटे को बैंगलोर भेजा था स्टडी करने के लिए इंग्लिश मीडियम में और तब उसको इंग्लिश आती थी सिर्फ in Kannada. What has happened is disgraceful, believe me. The other day I was in Rama Rao's house when they bought a bundle of firewood. Rama Rao's son came out to pay for it. He asked the woman, "How much should I give you?" "4 pies," she said. The boy told her he did not have any change and asked her to come the next morning. The poor woman did not understand the English word change and went away muttering to herself. I too did not know. Later, when I went to Ranga's house and asked him, I understood what it meant. अब वो एक इंसिडेंट बता रहे हैं कि रामा राव के घर में एक बार लकड़ी जलाने के लिए लकड़ी उन्होंने मंगवाई थी और उनका बेटा जो है वो बाहर आया पैसे देने के लिए, तो उसने पैसे पूछे तो ओल्ड लेडी ने उसको पैसे बताए, तो उस लड़के ने बोला उनको कि मेरे पास चेंज नहीं है। अब चेंज इज़ another word for लूज़ कॉइन्स, खुले पैसों के लिए चेंज एक इंग्लिश वर्ड है। तो वो उस वुमन को समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो उसको लगा कि वो पैसे नहीं दे रहा है और मुझे बिना पैसों के भेज दिया। तो शी वेंट अवे मटरिंग, मटरिंग मतलब कि अपने मुँह में बुड़बुड़ाना। तो वो बुड़बुड़ाते हुए चली गई, ज़रूर वो कुछ उसको गालियाँ दे रही होंगी या उसको बुरा-भला कहते हुए चली गईं क्योंकि उनको पैसे नहीं मिले। तो राइटर कह रहे हैं कि मुझे भी नहीं पता था कि चेंज का मीनिंग क्या है। बाद में जब मैं रंगा के घर में गया और उससे पूछा तब मुझे पता चला। तो उनको नैरेटर को ये बताते हुए बड़ी शर्म आ रही है कि हमारे गाँव में लोगों को इतनी-सी इंग्लिश भी नहीं आती। This priceless commodity, the English language, was not so widespread in our village a decade ago. That was why Ranga's homecoming was a great event. People rushed to his doorstep announcing, "The accountant's son has come. The boy who had gone to Bangalore for his studies is here, it seems. And come, Ranga is here, let's go and have a look." तभी वो कह रहे हैं कि यार करीब 10 साल पहले जब रंगा जो अकाउंटेंट का बेटा था बैंगलोर से पढ़कर आया था इंग्लिश, तो लोगों में बहुत शोर थी, बहुत एक्साइटमेंट था। सब लोग उनके घर की तरफ चल पड़े थे कि अकाउंटेंट का बेटा आ गया है, बैंगलोर से पढ़कर आया है, इंग्लिश पढ़कर आया है, चलो देखते हैं कैसा है वो। Attracted by the crowd, I too went and stood in the courtyard and asked, "Why have all these people come? There is no performing monkey here." तो वो कह रहे हैं, नैरेटर कह रहे हैं कि मैं भी चला गया भीड़ को देखकर और वहाँ उनके आंगन में, कोर्टयार्ड इज़ आंगन, वेरांडा, तो वहाँ खड़ा हो गया। तो और मैं पूछने लगा कि यहाँ क्यों आ गए सब लोग? यहाँ कोई बंदर का तमाशा थोड़ी हो रहा है। A boy, a fellow without any brains, said loud enough for everyone to hear, "What are you doing here then?" तो एक लड़के ने, एक बिना दिमाग के लड़के ने उनको भी कह दिया नैरेटर को, "तो फिर आप क्या करने आ गए यहाँ पर?" A youngster, immature and without any manners. अब बुरा तो बहुत लगा नैरेटर को, वो कह रहे हैं कि वो बड़ा इमेच्योर लड़का था और तमीज़ नहीं है उसे। Thinking that all these things were now of the past, I kept quiet.
तो उनको गुस्सा तो आया लेकिन वो चुप रह गए। Seeing so many people there, Ranga came out with a smile on his face. Had we all gone inside, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta. Thank God it did not. Everyone was surprised to see that Ranga was the same as he had been 6 months ago when he had first left our village. An old lady who was near him ran her hand over his chest, looked into his eyes, and said, "The Genevra is still there. He hasn't lost his caste." She went away soon after that. रंगा laughed. अब रंगा बाहर आ गया और सब लोग उसको देखकर बड़ी तसल्ली हो गई, सेटिस्फेक्शन हो गई सबको कि वो बदला नहीं बिल्कुल भी और उसकी मैनरिज्म सेम थी। एक ओल्ड लेडी उसके पास जो खड़ी थी, उन्होंने उसके चेस्ट पर हाथ फेर कर और चेक किया कि जनेऊ, ये जनेवरा इज जनेऊ जो ब्राह्मण लोग पहनते हैं, तो वो अभी भी है। इसका मतलब उसने अपना ट्रेडिशन, अपनी जाति चेंज नहीं करी है। और रंगा को बड़ी हंसी आई ये देखकर। Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes, and nose, the crowd melted away like a lump of sugar in a child's mouth. I continued to stand there. After everyone had gone, I asked, "How are you, Rangappa? Is everything well with you?" It was only then that Ranga noticed me. He came near me and did a namaskar, respectfully saying, "I am all right with your blessing." अब जब लोगों को तसल्ली हो गई कि रंगा बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, तो सब लोग चले गए, लेकिन नैरेटर वहीं खड़े रहे और उन सबके जाने के बाद उन्होंने रंगा से उसका हाल-चाल पूछा। तब रंगा उनके पास आया और उसने बड़ी रिस्पेक्ट से उनको नमस्कार किया। I must draw your attention to this aspect of Ranga's character. He knew when it would be to his advantage to talk to someone and rightly assessed people's worth. अब वो कह रहे हैं कि रंगा में एक क्वालिटी थी कि उसे पता था कि मुझे किससे बात करने में फायदा है और लोगों की कीमत, लोगों की वर्थ का वो सही अंदाजा लगाता था। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो ये हिंट दे रहे हैं कि रंगा वॉज अ लिटिल बिट सेल्फिश, कि जहाँ पे वो फायदा देखता था वहीं पर वो बात करता था। As for his namaskar to me, he did not do it like any present day boy, with his head up towards the sun, standing stiff like a pole without joints, jerking his body as if it was either a wand or a walking stick. Nor did he merely fold his hands. He bent low to touch my feet. अब वो कह रहे हैं कि रंगा ने जो नमस्कार किया मुझे, वो आजकल के लड़कों की तरह नहीं किया, जो जब पैर छूते हैं तो उनका सर जो है वो ऊपर की तरफ होता है और सीधे खड़े होकर जस्ट एक झटके से झुकने का नाटक करते हैं। और ना ही उसने सिर्फ हाथ जोड़कर नमस्कार किया, उसने पूरा झुककर, नीचे झुककर मेरे पैरों को हाथ लगाया। May you get married soon, I said, blessing him. After exchanging a few pleasantries, I left. तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी जल्दी शादी हो जाए और उसके बाद थोड़ी बहुत हाल चाल पूछकर वो चले गए। That afternoon, when I was resting, Ranga came to my house with a couple of oranges in his hand. A generous, considerate fellow. It would be a fine thing to have him marry, settle down, and be of service to society, I thought. उसी दोपहर को जब वो रेस्ट कर रहे थे तो रंगा उनके घर आया कुछ संतरे लेकर एज अ गिफ्ट। तो वो उनके मन में, नैरेटर के मन में ख्याल आया कि बड़ा काइंड और बड़ा कंसिडरेट फेलो है ये, तो इसकी शादी करवा देना अच्छा रहेगा। For a while, we talked about this and that. Then I came to the point. Rangappa, when do you plan to get married? I'm not going to get married now, he said. Why not? अब उन्होंने सीधा उसको थोड़ी देर बाद टॉपिक छेड़ दिया कि तुम कब शादी करना चाहते हो? तो रंगप्पा ने बोला कि मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ अभी। I need, अब रीजन बता रहा है वो, I need to find the right girl. I know an officer who got married only 6 months ago. He's about 30 and his wife is 25, I'm told. They will be able to talk lovingly to each other. Let's say I married a very young girl. She may take my words spoken in love as words spoken in anger. Recently, a troupe in Bangalore staged the play Shakuntala. There is no question of Dushyant falling in love with Shakuntala if she were young, like the present day brides. Is there? What would have happened to Kalidas' play? If one gets married, it should be to a girl who is mature, otherwise, one should remain a bachelor. That's why I'm not marrying now. अब रंगा की जो
थिंकिंग थी वो ये थी कि अगर शादी करनी हो तो किसी मैच्योर लड़की से करनी चाहिए, बहुत यंग लड़की से नहीं करनी चाहिए। तो वो एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि अगर मैं किसी यंग लड़की से शादी कर लेता हूँ और मैंने कोई बात प्यार से कही और वो ये समझ ले कि मैं उसको गुस्सा कर रहा हूँ, दैट मीन्स कम्युनिकेशन गैप हो, तो क्या होगा? ऐसी शादी नहीं चलती। तो कोई मैच्योर लड़की मिलेगी तभी शादी करनी चाहिए, अदरवाइज़ बैचलर मतलब कुँवारा रहना ही अच्छा है। इसलिए मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। इज़ देयर एनी अदर रीज़न? अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स। What we have now are arranged marriages. How can one admire a girl with milk stains on one side of her face and wetness on the other? Or so young that she doesn't even know how to bite her fingers? अब साथ ही साथ एक और रीजन बता रहा है वो रंगा कि आजकल अरेंज्ड मैरिजेस होती हैं, लेकिन वो ये चाहता था कि मैं उस लड़की से शादी करूं जिसे मैं पसंद करता हूं, और साथ ही वो कह रहा है कि एक ऐसी लड़की, इतनी यंग लड़की जिसके जिस जो दूध पिए तो उसके मुँह पर दाग लग जाएँ और गीला रह जाए उसका फेस, इतनी यंग लड़की को कोई कैसे प्यार कर सकता है? तो उसका थिंकिंग ये थी कि वो एक थोड़ा टाइम लेना चाहता था और जिस लड़की को पसंद करके और उसको मैच्योर होने पर ही शादी करना चाहता था, कुछ टाइम चाहता था। वन अ नीम फ्रूट द अदर अ बिटर गार्ड। अब ये मुहावरा है कि एक तो करेला और दूसरा नीम चढ़ा। एग्जैक्टली, रंगा said laughing. I was distressed that the boy who I thought would make a good husband had decided to remain a bachelor. After chatting for a little longer, Ranga left. I made up my mind right then that I would get him married. अब पहले तो नैरेटर को दुख हुआ कि इतना समझदार लड़का शादी नहीं करना चाहता, लेकिन बाद में उन्होंने सोच लिया कि मैं इसकी शादी करवा के छोड़ूंगा। Ramarao's niece, a pretty girl of 11, had come to stay with him. She was from a big town, so she knew how to play the veena and the harmonium. अब नैरेटर बता रहे हैं रामा राव एक और उनके विलेज में जो आदमी था, उनकी नीस, भतीजी या भांजी, जो सिर्फ 11 साल की थी, वो उनके घर रहने आई थी रामाराव के, और बड़े शहर से आई थी और उसे वीणा और हारमोनियम दोनों इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते थे। शी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, उसकी आवाज भी बहुत प्यारी थी। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम। उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी और इसलिए वो रामाराव के घर पर रहने के लिए आ गई थी। रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर एंड शी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम। अब नैरेटर ने ये सोच लिया कि उसकी शादी वो रंगा से फिक्स करवाएंगे। Since I was a frequent visitor to Ramarao's place, the girl was quite free with me. I completely forgot to mention her name. Ratna, it was. The very next morning, I went to their house and told Ramarao's wife, I'll send some buttermilk for you. Ask Ratna to fetch it. अब अगले ही दिन उन्होंने डिसाइड किया कि रामाराव के घर गए वो, और उन्होंने रामाराव की वाइफ को बोला कि मैं कुछ छाछ, बटर मिल्क इज छाछ, कुछ छाछ भेजना चाहता हूँ आपके लिए। तो रत्ना को, मेरे वो जो गर्ल थी 11 इयर्स की, उसका नाम रत्ना था, तो रत्ना को मेरे घर आप भेज देना। अब यहाँ से बड़ा फनी इंसिडेंट शुरू होगा, किस तरह से वो उनकी शादी फिक्स करवाएंगे। रत्ना केम, इट वाज अ फ्राइडे, so she was wearing a grand sari. I told her to sit in my room and requested her to sing a song. I sent for Ranga. While she was singing the song Krishnamurti in front of my eyes, Ranga reached the door. He stopped at the threshold. He did not want the singing to stop, but was curious to see the singer. Carefully, he peeped in. The light coming into the room was blocked. Ratna looked up and seeing a stranger there, abruptly stopped. अब रत्ना जब आई, वो फ्राइडे का दिन था, उसने साड़ी पहनी हुई थी, उसको नैरेटर ने बोला कि कमरे में बैठो और एक गाना सुनाओ, और वो गाना गाने लगी। और साथ ही साथ नैरेटर ने रंगा को भी बुलवा लिया अपने घर पर। और रंगा जब आया तो उसने गाने की आवाज सुनी तो वो घर के दरवाजे पर ही रुक गया, किनारे पर रुक गया। थ्रेशोल्ड इज द बाउंड्री, किनारा। तो अब उसने आवाज सुनी, उसको गाना बहुत पसंद आया, वो देखना चाहता था कि कौन गा रहा है, तो उसने अंदर झांक कर देखा। पीप्ड इन मतलब झांक कर देखा। अब जब उसने झांका
तो रत्ना को पता लग गया कि कोई झांक रहा है और उसने एकदम से देखा तो वो अनजान था रंगा उसके लिए, तो वो एकदम से रुक गई गाना गाते-गाते। Suppose you buy the best quality mango, you eat it slowly, devouring its peel before biting into the juicy flesh. You do not want to waste any part of it. Before you take another bite, the fruit slips out of your hand and falls to the ground. How do you feel? अब वो बड़ा फनी एग्जांपल दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सपोज आपने बहुत ही बढ़िया एक आम खरीदा और आप उसको छीलते हुए और धीरे-धीरे उसको एन्जॉय कर रहे हो, उसको उसके मज़े ले रहे हो और आप कोई भी उसका हिस्सा वेस्ट नहीं करना चाहते हो, उसका छिलका भी आप चूस-चूस के खा रहे हो। अब जैसे ही आप एक और बाइट लेना चाहते हो, सपोज कीजिए कि वो मैंगो आपके हाथ से फिसल कर और ज़मीन पर गिर गया, तो आपको कैसा लगेगा? तो रंगा's face showed the same disappointment when the singing stopped. तो वो उसके कंपैरिजन रंगा से कर रहे हैं कि रंगा को भी ऐसे ही लगा कि जैसे ही उसने अंदर झांका और अभी वो एंजॉय कर रहा था गाना और एकदम से गाना बंद हो गया. You sent for me, he asked as he came in and sat on a chair. Ratna stood at a distance, her head lowered. Ranga repeatedly glanced at her. Once our eyes met and he looked very embarrassed. No one spoke for a long while. अब रंगा अंदर आके बैठ गया और वहीं रत्ना खड़ी थी और बीच-बीच में रंगा जो है वो उसकी तरफ देख रहा था और एक बार नैरेटर ने भी उसे देख लिया देखते हुए तो उसे वो बहुत एम्बैरेस्ड फील कर रहा था, शर्म आ रही थी उसे। It was my coming in that stopped the singing, let me leave. Words, mere words. The fellow said he would leave but did not make a move. How can one expect words to match actions in these days of Kali? अब वो कह रहे हैं, रंगा ने बोला कि मेरे आने से ही इनका गाना बंद हो गया है तो मैं चला जाता हूँ। अब नैरेटर कह रहे हैं कि हाँ, देखो कैसा कह रहा है वो कि मैं चले जाता हूँ लेकिन हिला भी नहीं वहाँ से। तो वो कह रहे हैं कि ये कलियुग का टाइम है, लोगों के वर्ड्स और एक्शंस मैच ही नहीं करते। तो बीच-बीच में नैरेटर जो हैं वो बड़े फनी स्टाइल में लिख रहे हैं। Ratna ran inside, overcome by shyness. After a while, Ranga asked, who is that girl, Swami? Who's that inside? The lion wanted to know. The he goat who had taken shelter in the temple replied, does it matter who I am? I am a poor animal who has already eaten 9 lions. I have vowed to eat one more. Tell me, are you male or female? The lion fled the place in fear, it seems. अब वो फिर से एक फनी एग्जांपल दे रहे हैं कि जब रंगा ने पूछा कि ये लड़की कौन है, तो उसका कंपैरिजन वो लायन और ही गोट मतलब बकरे से कर रहे हैं कि शेर पूछ रहा है कि ये अंदर कौन है, ये बकरा कौन है, तो वो बकरा सोच रहा है क्या फ़र्क पड़ता है मैं कौन हूँ? मैं आप तुम पहले ही इतने सारे बकरे खा चुके हो, एक और खाना चाहते हो तो ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है मेल हूँ या फीमेल हूँ? तो बीच में फ़नी इंसिडेंट्स वो एग्ज़ाम्पल्स डाल रहे हैं राइटर। Like the he goat, I said, what does it matter to either of us who she is? I'm already married and you are not the marrying kind. अब वो उसको टॉन्ट मार रहे हैं रंगा को। वो कह रहे हैं क्या फ़र्क पड़ता है वो लड़की कौन है? मेरी शादी हो चुकी है और तुमने शादी करनी ही नहीं है। तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है वो लड़की कौन है? Very hopefully he asked, she isn't married then? His voice did not betray his excitement, but I knew it was there. तो फिर रंगा ने ये पूछा, अच्छा इसकी शादी नहीं हुई है? तो नैरेटर कह रहे हैं कि उसकी वॉइस में, उसकी आवाज़ में वो एक्साइटमेंट नज़र आ रही थी कि वो बड़ा खुश हो गया था ये सुनकर कि लड़की की शादी नहीं हुई है। शी वॉज मैरिड अ ईयर अगो, लेकिन नैरेटर ने उसे बताया 1 साल पहले उसकी शादी हो चुकी है। हिज फेस श्रिवल्ड लाइक अ रोस्टेड ब्रिंजल। अब वो कह रहे हैं कि उसका रंगा का फेस ये बात सुनकर ऐसे सिकुड़ गया जैसे कि भुना हुआ बैंगन। आफ्टर अ वाइल रंगा लेफ्ट सेइंग आई मस्ट गो, आई हैव वर्क एट होम। अब रंगा थोड़ी देर बाद चला जाता है। I went to our Shastri the next morning and told him, keep everything ready to read the stars, I'll come later. I tutored him in all that I wanted him to say. अब अगले दिन ही नैरेटर जो हैं वो शास्त्री जी, पंडित जी को मिलने गए और उनको बोला कि सब कुछ अपना सामान तैयार रखना,
सितारे पढ़ने के लिए, मतलब ग्रह वगैरह मिलाने के लिए, कुंडलियाँ मिलाने के लिए मैं आपके पास दोबारा आऊँगा, और उसको सारा समझा दिया कि उसको क्या-क्या बोलना है। I found no change in Ranga when I met him that afternoon. What's the matter? You seem to be lost in thought. I said, nothing, nothing's wrong, believe me. Headache? Come, let's go and see a doctor. अब नैरेटर उसको मिले रंगा को, और उनको उसको जबरदस्ती कह रहे हैं कि तुम बड़े खोए खोए से लग रहे हो, तुम्हारे लगता है तुम्हारे सर में दर्द है, चलो हम डॉक्टर को दिखा कर आते हैं। एक्चुअल में वो किसी तरह उसको शास्त्री जी के पास ले जाना चाहते हैं। I have no headache. I'm my usual self. I went through the same thing when the process of choosing a girl for me was going on. But I don't think that that could be a reason for your present condition. Ranga stared at me. अब राइटर खुद ही कह रहे हैं उसे कि जब मेरे लिए लड़की ढूंढी जा रही थी तो मैं भी ऐसे ही परेशानी से गुजर रहा था, लेकिन तुम्हारी कंडीशन तो ऐसी नहीं होनी चाहिए क्योंकि तुम तो लड़की देख ही नहीं रहे हो। तो रंगा बड़े ध्यान से उनको बड़ी हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा। कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री, आई सजेस्टेड। विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट। अब वो सीधा मुद्दे पर आ गए। उन्होंने कहा कि चलो हम पंडित जी के पास चलते हैं और देखते हैं कि तुम्हारे जो सितारे हैं, तुम्हारे जो ग्रह हैं, गुरु और शनि, वो तुम्हारे फेवर में हैं या नहीं। Ranga accompanied me without any protest. As soon as Shastri saw me, he exclaimed, "What a surprise, Shama! Haven't seen you for a long time." अब शास्त्री जी जैसे उनको सिखाया गया था, उन्होंने हैरानी से बोला कि अरे श्यामा, श्यामा जो है वो ऑथर का नाम है। तो वो कह रहे हैं कि बड़ी हैरानी हुई तो श्यामा तुम्हें देखकर, बहुत टाइम से तुम मिले नहीं। श्यामा इज नन अदर देन योर सर्वेंट द नैरेटर ऑफ दिस टेल। I got angry and shouted, "What? Only this morning?" Shastri completed my sentence. You finished all your work and are now free to visit me. Had he not done so, I would have ruined our plan by bursting like grains that are kept in the sun to dry. I was extremely careful of what I said afterward. अब जैसे ही शास्त्री जी ने ये कहा कि तुम्हें देखा नहीं बहुत दिनों से, तो नैरेटर को गुस्सा आ गया और वो चिल्लाने लगे, क्यों? अभी सुबह ही तो। इतना ही बोला था उन्होंने, तभी शास्त्री जी ने उनका सेंटेंस कंप्लीट कर दिया कि हाँ, तुम सारा काम खत्म करके और अब मेरे पास आए हो। तो नैरेटर ने बड़ी चैन की सांस ली कि अगर शास्त्री जी ने ये नहीं संभाली होती सिचुएशन, तो मैंने तो गलत बोल दिया था। शास्त्री टर्न टू रंगा। When did the young son of our accountant clerk come home? What can I do for him? It's very rarely that he visits us. अब शास्त्री जी कह रहे हैं कि ये जो अकाउंटेंट का क्लर्क है, ये कब वापस आया बेंगलोर से पढ़कर? मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए? टेक आउट योर पैराफर्नेलिया। Our Rangappa seems to have something on his mind. Can you tell us what's worrying him? Shall we put your science of astrology to the test? अब नैरेटर ने बोला कि आप अपना सारा सामान, पैराफर्नेलिया इज द मटेरियल रिक्वायर्ड इन योर प्रोफेशन। जो भी जैसे डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर का पैराफर्नेलिया होगा स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर एंड एटसेट्रा, और पंडित जी का पैराफर्नेलिया होगा जो उनकी बुक्स हैं एस्ट्रोलॉजी की, या जो उनकी कुंडलियां हैं, वो सब। सो उन्होंने, नैरेटर ने बोला कि आप अपना सामान निकालिए, और हमारे रंगप्पा जो हैं उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, कुछ चिंता है, तो देखते हैं आपकी ज्योतिष विद्या क्या बताती है। There was authority in my voice as I spoke to Shastri. He took out 2 sheets of paper, some cowries, and a book of Palmyra leaves, saying, "Ours is an ancient science, Aya. There is a story to it, but I won't tell you that story now. This is not a Hari Katha, which allows you to tell a story within a story. You may get bored. I'll tell it to you some other time." अब शास्त्री जी ने अपने कागज और बुक्स निकाली और वो पढ़ने लगे। Shastri moved his lips fast as he counted on his fingers and then asked, "What's your star?" Ranga didn't know. "Never mind," Shastri indicated with a shake of his head. He did some more calculations before saying in a serious tone, "It's about a girl." अब शास्त्री जी ने कुछ गिनती करी अपनी उंगलियों पर और रंगा से उसका नक्षत्र पूछा, उसकी ग्रह पूछा, लेकिन रंगा को नहीं पता था। तो फिर शास्त्री जी ने कुछ और कैलकुलेशन करके ये डिक्लेयर कर दिया कि इनको किसी लड़की के बारे में कोई चिंता है। आई हैड बीन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल दिस वाइल। अब नैरेटर की
हंसी जो है वो अंदर से हंस रहे थे वो, क्योंकि ये सब उन्होंने ही सिखाया था शास्त्री जी को बोलने के लिए। बट नाउ आई बर्स्ट आउट लाफिंग। आई टर्न टू रंगा, एग्जैक्टली व्हाट आई हैड सेड। हु इज दैट गर्ल? इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन। अब वो हंसते हुए रंगा की तरफ कहते हैं, देखा मैंने कहा था ना कोई लड़की की चिंता है। और शास्त्री जी से पूछा कि कौन है वो लड़की। शास्त्री थॉट फॉर अ while बिफोर रिप्लाइंग, शी probably हैज द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशन। अब देखिए किस तरह से शास्त्री जी और नैरेटर नाटक करेंगे, किस तरह से, बहुत फनी है यहाँ पर ये। तो शास्त्री जी कहते हैं कि उस लड़की का नाम कुछ ऐसा शुरू होता है जो चीज समुद्र में पाई जाती है। कमला, मे बी। कुड इट बी पक्षी, मॉस? तो वो कुछ मछली का नाम बता रहे हैं, कुछ घास का नाम बता रहे हैं, मॉस का नाम बता रहे हैं। तो ये नैरेटर जो है वो सिर्फ नाटक कर रहे हैं। मस्ट इट बी मॉस इफ इट्स नॉट कमल? Why not pearl or ratna, the precious stone? अब वो शास्त्री जी ही कह रहे हैं, उन्होंने हिंट दिया कि अगर कमल नहीं है तो कुछ घास होगी, या पर्ल भी हो सकता है, रत्ना भी हो सकता है, द प्रेशियस स्टोन। Ratna, the girl in Rama Rao's house is Ratna. Tell me, is there any chance of our negotiations bearing fruit? अब जैसे ही शास्त्री जी ने रत्ना का नाम निकाला तो नैरेटर ने उस नाम को पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि हाँ, वो लड़की का नाम रत्ना है जो रामा राव के घर में है। तो आप बताइए पंडित जी, क्या हमारे कुछ चांस हैं उससे बातचीत के? Definitely, he said after thinking for some time. There was surprise on Ranga's face and some happiness. I noticed it. अब वो कह रहे हैं रंगा को बड़ी हैरानी हो रही थी लेकिन साथ ही साथ खुशी भी हो रही थी. But that girl is married, I said. Then I turned to him, his face had fallen. लेकिन साथ ही नैरेटर ने बोल दिया, लेकिन उस लड़की की तो शादी हो चुकी है। और फिर से रंगा का फेस मुरझा गया, उदास हो गया। I don't know all that. There may be some other girl who is suitable. I only told you what our Shastra indicated. Shastri said. अब शास्त्री जी कह रहे हैं मुझे नहीं पता ये सब, कोई और लड़की भी हो सकती है, हमारे शास्त्रों में जो लिखा है मैंने तो आपको वो बता दिया। We left the place. On the way we passed by Rama Rao's house. Ratna was standing at the door. I went in alone and came out a minute later. Surprising, this girl isn't married, it seems. Someone told me the other day that she was. What Shastri told us has turned out to be true after all. But Rangappa, I can't believe that you have been thinking of her. Swear on the name of Madhavacharya and tell me, is it true what Shastri said? अब रास्ते में ही रामा राव का घर था। नैरेटर जो है वो अकेले ही अंदर चले गए और 2 मिनट बाद ही बाहर आ गए और आकर रंगा को बता रहे हैं कि ये लड़की की शादी नहीं हुई, मुझे किसी ने गलत बताया था। लेकिन रंगा, मैं ये विश्वास नहीं कर सकता कि तुम उस लड़की के बारे में सोच रहे थे। सच बताओ, क्या शास्त्री जी ने जो बताया वो सच है? I do not know whether anyone else would have been direct. Ranga admitted, there is greater truth in that Shastra than we imagine. What he said is absolutely true. अब रंगा ने मान लिया कि जो पंडित जी ने बताया था वो बिल्कुल सच है। मैं इसी लड़की के बारे में सोचकर परेशान था। Shastri was at the well when I went there that evening. I said, so Shastri Gale, you repeated everything I had taught you without giving rise to any suspicion. What a marvelous Shastra yours is. He didn't like it at all. अब शाम को वो पंडित जी उनको कुएं पर मिले तो उन्होंने, नैरेटर ने उनको शाबाशी दी कि आपने जो जो मैंने आपको सिखाया था आपने बड़े अच्छे से वही वही बोला। तो शास्त्री जी को ये सुनकर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि what are you saying? What you said to me was what I could have found out myself from the Shastras. Don't forget, I developed on the hints you had given me. Tell me, is this what a decent man says? अब शास्त्री जी को गुस्सा ये आया, वो कहते हैं नैरेटर को, तुम क्या कह रहे हो कि तुमने मुझे सिखाया? ये सब तो मैं खुद भी अपने शास्त्र विद्या से बता सकता था। ये मत भूलो कि मैं तुमने मुझे सिर्फ हिंट दिए थे और मैंने ही उससे पूरा प्रिडिक्शन करी है। तो अब नैरेटर कह रहे हैं कि लो बताओ, ये कोई डिसेंट मैन की बात होती है कि मैंने ही सारा सिखाया था पंडित जी को और अब वो मना कर रहे हैं।
Rangappa had come the other day to invite me for dinner. What's the occasion? I asked. अब ये सीन कुछ टाइम आगे का है. It's Shama's birthday. He's 3. अब वो नैरेटर बता रहे हैं कि रंगप्पा उनको डिनर के लिए इनवाइट करने आया था कुछ टाइम बाद, और उन्होंने उससे जब ओकेजन पूछा तो रंगप्पा ने बताया कि श्यामा का बर्थडे है, कि वो 3 साल का हो गया है. मतलब रंगा की शादी हो चुकी है और उसके बेटे का नाम श्यामा है और वो 3 साल का हो चुका है. It's not a nice name, Shama, I said. I'm like a dark piece of oil cake. Why did you have to give that golden child of yours such a name? What a childish couple you are, Ratna and you. अब नैरेटर कह रहे हैं कि श्यामा नाम कोई अच्छा नाम नहीं है. तुम्हारा इतना सुंदर, इतना गोरा बच्चा, और उसको तुमने श्यामा नाम दे दिया. ये तो कोई डार्क कलर्ड बच्चा हो उसको नाम देना चाहिए. तो तुम बड़े व्हाट अ चाइल्डिश कपल यू आर. बड़ा बचपना है तुम दोनों में, रत्ना और तुम में. इसका मतलब रंगा की शादी रत्ना से ही हो गई थी और 3 साल का उसका बेबी भी हो चुका था. I know. It is the English custom of naming the child after someone you like. Your wife is 8 months pregnant now. Who's there to help your mother to cook? अब वो साथ ही साथ नैरेटर उसको खुद ही कह रहे हैं रंगा को कि मुझे पता है ये इंग्लिश लोगों का रिवाज है कि आप जिसको पसंद करते हो उसके ऊपर आप बच्चे का नाम रख देते हो. तो रंगा ने अपने बच्चे का नाम नैरेटर के ऊपर रखा था क्योंकि नैरेटर ने उनकी शादी फिक्स करवाई थी. और अब रत्ना का एक और बेबी होने वाला था. शी इज 8 months प्रेग्नेंट नाउ. अब नैरेटर उससे बात कर रहे हैं. माई सिस्टर हैज कम विद हर. I went there for dinner. Shama rushed to me when I walked in and put his arms round my legs. I kissed him on his cheek and placed a ring on his tiny little finger. Allow me to take leave of you, reader. I'm always here ready to serve you. You were not bored, I hope. अब वो रात को डिनर पर रंगा के घर गए और उनका बेबी जो था श्यामा वो उनके पास आ गया और उसके हाथ में उन्होंने, क्योंकि पहली बार मिल रहे थे, उसके हाथ में छोटी सी एक रिंग रख दी. तो अब वो कह रहे हैं कि अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू द रीडर. तो रीडर हमें वो कह रहे हैं कि अब मैं ये स्टोरी यहीं खत्म करता हूँ. एंड यू वर नॉट बोर्ड, आई होप. तो इस तरह से ये बड़ा फनी इंसिडेंट है कि किस तरह से नैरेटर ने रंगा की शादी एक छोटी सी लड़की 11 ईयर ओल्ड रत्ना से फिक्स करवाई, जबकि रंगा चाहता था किसी मेच्योर लड़की से शादी करना. So that's all. Thank you so much.